مشتری عمر سدھو کو آج رات سیل کر دیا گیا۔ EME سوسائٹی، گرین سٹی، DHA کے مختلف سیکٹرز بند ہوں گے۔ علاقے میں میڈیکل سٹورز اور گروسری کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ جعلی پائلٹس کا معاملہ، امریکہ نے PIA پروازیں پر پابندی لگا دی۔ خصوصی اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے تصدیق کر دی۔ PIA ترجمان نے پابندی کہتے ہیں پابندی کی ای میل موصول ہوئی ہے، امریکہ کے جلد خدشات دور کریں گے۔ پاکستان ایئر لائنز کا متحدہ عرب امارات کے لیے آپریشن بحال۔ دیار غیر میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے ایک اور پرواز اڑان بھر گئی۔ اب مسافر پاکستان سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کے لیے سفر کر سکیں گے۔ کہا گیا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب پر قومی اسمبلی میں ہنگامہ، اپوزیشن ارکان کی عمر ایوب سے تلخ کلامی۔ سابق حکومتوں نے کچھ نہیں کیا۔ ماضی میں کہا گیا کراچی از ناٹ مائی پرابلم، ہم کہتے ہیں کراچی ہمارا ہے۔ لوڈ شیڈنگ پر تمام اداروں کو بلایا، بجلی کی ترسیل اور منتقلی کے نظام میں تبدیلی نہیں لائی گئی۔ اسد عمر کا جوابی وار، تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان شور شرابہ کرتے رہے۔ بجلی مسئلہ کا عدالت ہے، حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو 200 اضافی میگا واٹ دیں گے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کا جواب، کہا مانسون میں بارشوں سے جو پانی جمع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شہر سے پانی نکالنے کے لیے مشینری بجلی سے نہیں ڈیزل سے چلتی ہے۔ ہر سوال کے جواب میں ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج سمجھ آیا کہ سوال گندم اور جواب چنا کا مقصد کیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی تنقید کے نشتر چلا دیے کہ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے۔ MQM وزیر امین الحق کا منگل کو پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات۔ صوبائی امور، کورونا اقدامات سمیت کے الیکٹرک معاملات پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کی بجلی بندش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہ الیکٹرک حکام کے ساتھ ملاقات کی ہدایت۔ اس اجلاس حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں تلخ کلامی۔ آصف زرداری اور فریال تالپور بھگتا لیتے رہے۔ سابق صدر نے 14 شوگر ملز پر قبضے کیے۔ عزیر بلوچ نے اعتراف کیا کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر اہلکاروں کو قتل کیا۔ مراد سعید عزیر بلوچ کا 164 کا بیان لے آئے۔ اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، احتجاجاً واک آؤٹ کر گئی۔ ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے جی۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے، ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبردآزماں ہیں۔ ملک بچانا ہے تو مائنس آل کرنا پڑے گا۔ 5 سال پورے کرنے کی بات قوم کو بد دعا دینے کے مترادف ہے۔ ایک انڈا نہیں، پورا ٹوکرا ہی خراب ہے۔ فضل الرحمان کا دوبارہ شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ گفتگو میں کہا دنیا کووڈ-19 کا مقابلہ کر رہی ہے، اپوزیشن پاکستان میں کووڈ-18 سے نبرد آزما ہے۔ حکومت کا 15 سپتمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں منظوری۔ تعلیمی ادارے SOPs کے تحت کھولے جائیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا اگست کے پہلے اور تیسرے ہفتے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، بڑی عید پر صرف ایک چھٹی ملے گی۔ عید الاضحیٰ جمعہ کو ہونے کا امکان۔ عید کی تعطیلات میں ہفتہ اور اتوار بھی شامل ہوگا۔ ادھر وفاق اور صوبوں نے ملازمین کو عید سے قبل تنخواہ دینے کا پلان فائنل کر لیا۔ بڑی عید آ رہی ہے، قربانی کی عید۔ میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا۔ ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म की अवाम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। गुफ्तगू में कहा, अवाम ने ईद उल फित्र पर लापरवाही बरती। अपील करता हूँ इस बार अया ना करें। कुर्बानी से मुतल्लिक SOPs बनाए हैं, लोगों को इस पर अमल करना होगा। अब एहतियात ना बरती तो वायरस दोबारा फैल सकता है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद बतदरीज कम हुई। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत इदारे की कारकर्दगी बारे इजलास। मेगा करप्शन केसेस और इंक्वायरीज का जायजा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, बदअनवान अनासर से 466 अरब वसूल, 1686 इंक्वायरीज और 609 इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल कर चुके हैं। व्हाइट कॉलर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां नुमाया कामयाबी हासिल हुई। करप्शन के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सूबाई अमूर समेत सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन के मनफी प्रोपेगेंडे को मिलकर मुस्तरद करने पर इत्तफाक। बारिशों में के इलेक्ट्रिक का निजाम डूब गया। कराची में लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, काला पुल, हजारा कॉलोनी की सूरत हाल खराब। लोग हब्स और गर्मी से परेशान। कौमी एयरलाइंस के मशकूक लाइसेंसेस का मामला। यूरोप के बाद अमेरिका ने भी PIA के परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। PIA परवाज़ों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस पाबंदी लगाई गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कौमी एयरलाइंस के मशकूक लाइसेंसेस का मामला। यूरोप के बाद अमेरिका ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। PIA परवाज़ों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस ये पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पाबंदी लगाई थी PIA के ऊपर, PIA की परवाज़ों के ऊपर, और अब USA ने भी लगा दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसर बताइएगा, PIA को एक के बाद एक और पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। अपने नाज़रीन को बताएं कि US की परवाज़ों के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है। मशकूक लाइसेंसेस का ये मामला है। पायलट्स के जाली और मशकूक लाइसेंस का ये मामला है, और इससे पहले तशवीश का इजहार किया गया था यूरोपियन जो सेफ्टी इदारा है उसकी जानिब से, और जो PIA की परवाज़ें हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और इस तशवीश को देखते हुए US ने भी अब PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मुस्तनसर अब्बास मौजूद हैं। मुस्तनसर बताइएगा, एक के बाद एक और पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है PIA को। जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। पायलट के जाली लाइसेंसेस का जो मामला है वो संगीन हो गया है। अमेरिका ने PIA की परवाज़ों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और PIA का खुसूसी इजाज़तनामा भी मनसूख कर दिया है। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने PIA परवाज़ों को सेफ्टी पर तशवीश के बायस पाबंदी लगाई गई है। अमेरिकी जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना और PIA अमेरिका के लिए अपनी परवाज़ें नहीं चला सकेगा। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने PIA की हर किस्म की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी और इस हवाले से बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानब PIA के तर्जमान ने पाबंदी आयद करने की तस्दीक की है कि अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ईमेल के जरिए बाकायदा पाकिस्तान PIA इंटरनेशनल एयरलाइन को इस हवाले से आगाह किया। अमेरिका के जो खदशात हैं इनको जल्द दूर करेंगे। उम्मीद है कि PIA में जारी इस्लाहाती अमल के जरिए पायलट वाला मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तनसर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर से मुलाकात की है और उन्होंने आज़ाद पतन और कोहाला पन बिजली मंसूबे को हकीकत बनाने पर इज़हार तशक्कुर किया है। दोनों मंसूबों से 8000 से ज़ायद मुलाजमतों के मौक़े भी पैदा होंगे। चाइना 3 गोरिजिस और चाइना गिजोरबा के CEOs ने भी मुआविन खुसूसी से मुलाकातें की हैं। अपने नाज़रीन को बताएंगे CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने मुलाकात की है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सलमान अली अवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आज चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात की है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से।
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में हाल ही में सी पैक के तहत 2 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं, जिनमें एक आज़ाद पत्तन है, दूसरा कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इन दोनों प्रोजेक्ट से तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। $4 बिलियन के प्रोजेक्ट और तवक्को की जा रही है कि इन दोनों प्रोजेक्ट से न सिर्फ सस्ती बिजली मैसर आएगी बल्कि 8,000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। इसी मुनासिबत से आज चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी जो कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी भी हैं, आसिम सलीम बाजवा, उनसे मुलाकातें की हैं वजीर आजम आजाद कश्मीर ने। और चाइना की दोनों कंपनीज ने जो कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जिनमें चाइना 3 गॉर्जेस डैम जिसमें कंपनी ने बनाया था वो कंपनी यानी चाइना 3 गॉर्जेस, और इसके अलावा चाइना के जूबा जो है, दोनों कंपनियों के सीईओज ने भी आसिम सलीम बाजवा से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों का बुनियादी मकसद यही था कि इन दोनों पावर प्रोजेक्ट्स को हकीकत का रूप देने में जो सी पैक अथॉरिटी का किरदार है, खासतौर पर जनरल आसिम सलीम बाजवा का किरदार है, उसको सराहा गया, इजहार तशक्कुर किया गया हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने। और उनका ये कहना था कि मुस्तकबिल में भी दोनों जानिब से जो ताउन है वो जारी रहेगा, ताकि इन मंसूबों को जो अमली जामा पहनाया अब तो जा चुका है, उसके ऊपर काम की रफ्तार तेज करने के अंदर मदद मिल सके और दोनों प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को सस्ती आजल पावर जो है वो मिलेगी, सस्ती पन बिजली मिलेगी और मुलाजमतों के मौके जो है वो भी पैदा होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अली अवान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का टीबी कंट्रोल बारे 5 साला प्रोग्राम नाकाम हो गया। प्रोग्राम के 5 साल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, जिसमें नाकामी की वजह फंड्स ना मिलने को करार दे दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 15 करोड़ रुपए की बजाय सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ रुपए जारी हुए। दूसरी जानिब महकमा सेहत और प्रोग्राम हुकाम की नाअहली का पोल भी इस रिपोर्ट में खुल गया है। इदरीस शेख हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इदरीस शेख, बताएगा क्या इंकशाफात हुए हैं, नाकामी की वजह क्या बताई गई है रिपोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, 2015 में पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में तपेदिक से मुतल्लिक इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने से मुतल्लिक ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसकी मियाद जो थी मुकम्मल होने की वो 2020 थी और 5 मुकम्मल होने के बाद इससे मुतल्लिक जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि पब्लिक ने उसने हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हुकूमती इदारे की जानिब से 5 साल मुकम्मल होने पर जो है इसमें सूबे भर में मुकम्मल तौर पर टीबी का खात्मा नहीं हो सका। इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि टीबी पर काबू पाने के लिए शुरू होने वाले प्रोग्राम में नाकामी की सबसे बड़ी वजह फंड्स के इजरा में रुकावट है। साबिक दौरे हुकूमत से लेकर मौजूदा दौरे हुकूमत तक प्रोग्राम के लिए फंड्स का बहुत कम इजरा किया गया और 3 अरब 15 करोड़ के प्रोग्राम में से 5 साल में सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ पे जारी किए गए। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फंड्स का मुकम्मल इजरा न होने पर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मुकर्ररा हदफ हासिल नहीं कर सका। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पर जो जारी शुदा फंड से जो कि तकरीबन 1 अरब 6 करोड़ रुपए में थे, उनसे भी सिर्फ 70 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इस तरह से ये 5 साल के लिए जो मनसूबा बनाया गया था 3 अरब 15 करोड़ रुपए का, उसमें सिर्फ 70 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और फंड के कम इजरा की वजह से ये जो मनसूबा है अपने अहदाफ जो है उनको हासिल करने में नाकाम रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा इदरीस शेख। पंजाब हुकूमत का कोरोना के बावजूद तरक्की की तरफ एक और कदम। सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा तरक्याती स्कीमें मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट पब्लिक हो गई। पंजाब भर में कम लागत के सैकड़ों स्कीमों को मुकम्मल किया गया। मजीद जान लेते हैं इदरीस शेख से। इदरीस शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के बायस जहां पंजाब की मईशत को तारीखी नुकसान पहुंचा और बहुत से अहम तरक्याती मनसूबे जो हैं वो पंजाब हुकूमत को डेफर करना पड़े। इसके साथ साथ अगर गुज़िश्ता माली साल के साथ ये जो है मौजूदा माली साल का मुवाजना किया जाए तो ये सामने आई है कि तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की हैं। इस सिलसिले में महकमा खजाना पंजाब की रिपोर्ट जो है वो भी पब्लिक होगी है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान गुलजार ने कोरोना के बावजूद माली वसाइल को तरक्याती मनसूबों की तरफ मोड़ा और गुज़िश्ता बरस मई तक पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 73 अरब रुपए के तरक्याती फंड इस्तेमाल किए थे, जबकि मौजूदा वर्ष पंजाब हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद मई तक 1 अरब 91 अरब रुपए के फंड इस्तेमाल किए हैं। और ये जो तरक्याती फंड थे इनके बेहतर इस्तेमाल के लिए पंजाब भर में कम लागत की सैकड़ों स्कीमों को मुकम्मल किया गया और माली मुश्किलात के बावजूद मेगा प्रोजेक्ट के फंड को अवामी फलाही मनसूबों पर खर्च किया गया। ये पंजाब के तरक्याती बजट से मुतलिक और अहदाफ से मुतलिक जो रिपोर्ट है ये भी वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, आपने हमें अपडेट किया।